Okay, so in the last lectures, we talked about the interference and diffraction. We did a quick recap of interference and diffraction phenomena. Today, we are going to talk about the polarization of light. Polarization of light. Okay, so students, till now we have gone through the phenomena of interference and diffraction. So you might have observed that the phenomena of interference and diffraction, these two phenomena, they show that the light travels in the form of waves, but they do not tell us about the type of the light waves, that is whether the light waves, they are longitudinal in nature or whether they are transverse in nature, or what is the type of waves, like whether they are linear, whether they are circular, or whether they are elliptical in nature, right? So that all these things, they are not informed by these two phenomena. So in order to study the type of waves, whether they are longitudinal, transverse, or circular, or linear, so the polarization of light comes into play. Okay, so this is all about the studying the type of light waves. So you might be knowing that waves are of two types: longitudinal waves longitudinal waves and transverse waves. So what are longitudinal waves? Longitudinal waves are those waves in which the vibrations are parallel to the direction of propagation, right? For example, let's say if my wave is propagating along this direction, that is along, let's say, positive x direction, then the vibrations are also propagating in the same way. The direction of vibrations is also along the positive x direction. Okay, so these are known as the longitudinal waves. For example, you can say sound waves, they are longitudinal in nature. Sound waves are longitudinal in nature. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, what do you mean by longitudinal and transverse waves? Give an example. Okay, so sound waves are longitudinal in nature, and longitudinal waves are those waves in which the direction of vibration is similar as that of the direction of propagation, right? Whereas this is not the case in transverse waves. In transverse waves, the direction of vibrations is perpendicular to the plane of vibration, is perpendicular to the direction of propagation. For example, if let's say this is my direction of propagation, the waves are propagating in x direction, in positive x direction, then the direction of vibrations will be perpendicular, like this. ओके, सो इट मे बी परपेंडिकुलर इन एनी सेंस, ठीक है? एक देखो, कोई भी लाइन है, कोई आप अपना पेन ले लो, पेन को आप एक डायरेक्शन में करो, तो उस पेन के ऊपर देयर कुड बी मेनी परपेंडिकुलर्स, ठीक है? एक ये भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, सो दिस कुड बी ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस कुड बी ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है? ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस हैं जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती हैं, ठीक है? उसके सराउंडिंग में पूरे, अगर आप एक सर्कल बना के देखोगे, सो ये जो सर्कल है वो अगर सेंटर पे अगर आप इसको अपने पेन को लेके जाओगे, तो ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं, ये सारी की सारी क्या होंगी, उसके परपेंडिकुलर होंगी, राइट? सो दिस काइंड ऑफ वेव्स वेयर द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ये जो है ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, दीज आर द वाइब्रेशंस, ठीक है? एंड ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन,
Okay, so in transverse waves the direction of vibration is perpendicular to the direction of propagation of the light. Okay, so examples are light waves, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर. Okay, so this is about the types of waves. So there are two types of waves, longitudinal waves and transverse waves. In longitudinal waves the direction of propagation is similar to the direction of vibration, and in transverse wave the direction of vibration is perpendicular to the direction of propagation of light. About the types of waves. Now we will take a mechanical example in which we will demonstrate how the polarization of the light takes place. Okay, so let us suppose we have one string which is held by a person A over here. So A is one person and B is another person on the sitting on the other end, and this B person is also holding the string. ठीक है, एक स्ट्रिंग है जो A ने होल्ड कर रखा है और B ने भी पकड़ रखा है उसको. ठीक है, और दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B. सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B. एंड लेट अस से कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है आपका, इस स्ट्रिंग को हमने दो स्लिट्स के थ्रू पास किया है. ये दो स्लिट्स लगा रखी है हमने यहाँ पे. दिस इज वन स्लिट or slit S1 you can see, and there is another slit which is also there and which is parallel to the slit S1. ये आपका S2 है. ठीक है, दो स्लिट्स हैं, एक आपका S1 है और दूसरा आपका S2 है. ओके, सो नाउ लेट अस सपोज ये जो पर्सन A है ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव करता है. अप एंड डाउन का क्या मतलब है, लाइक दिस, ऐसे 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 इसको मूव करेगा, अप एंड डाउन स्ट्रिंग को मूव करेगा ऐसे. ठीक है, लेकिन जब ये अप एंड डाउन मूव करेगा तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उसमें स्ट्रिंग में, राइट, एंड दोज वाइब्रेशंस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. कैसे होगी, अप एंड डाउन वाइब्रेशंस होंगी, वो इस तरह की वाइब्रेशंस होंगी, राइट. अब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ से मूव कर रहा है तो वाइब्रेशन यहीं पे होगी, वाइब्रेशन तो सारे स्ट्रिंग में पास होंगी, राइट. दीज वाइब्रेशंस दे विल पास फ्रॉम द पर्सन A to person B through the slits S1 and S2. Okay, so now because the slit S1 is parallel to the direction of the vibrations, so it will allow the vibrations to pass through the slit S1, and again since S2 is also parallel to the slit S1 and this is also parallel to the direction of vibrations, so it will also allow the vibrations to pass through it, and similarly the vibrations will reach to the person B. Okay, ठीक है. क्या किया A ने, क्या किया, स्ट्रिंग को अप एंड डाउन मूव किया. अप एंड डाउन मूव करने से क्या हुआ, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई. वाइब्रेशन जो थी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है स्लिट्स के S1 और S2 के, सो दीज वाइब्रेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम द पर्सन A and they will reach to the person B as such. There is no reduction in the amplitude, there is no reduction in the vibrations produced at the point A. Okay, now let's say this person A is, let me make another one so that you can understand it properly. So this is person A and this is person B, and we have two slits S1 and S2. So this is my S1 and this is S2. ठीक है, अब A ने क्या किया, A ने instead of moving the thread or instead of moving the string up and down, now the person A is moving this string in all possible directions.
ही इज मूविंग इट राउंड एंड राउंड, ठीक है, वो उसको राउंड मूव कर रहा है, सो दैट आपकी जो वाइब्रेशंस है वो सब तरफ जनरेट हो रही है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, सब तरफ आपकी वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, राइट। सो दिस इज लाइक दिस, द सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, ओके। सो अब क्या होगा, जब ये वाइब्रेशंस S1 पे जाएंगी तो कौन सी वाइब्रेशन जो है वो पास होंगी, बताइए। ओनली अप एंड डाउन डायरेक्शन यस, वाला जो ये होगा। yes, yes, only those vibrations will pass which are parallel to the slit S1, ठीक है। जैसे ये वाइब्रेशन है या इसके पैरेलल कोई और भी वाइब्रेशन है, तो only those vibrations will pass which are having a direction parallel to the direction of S1। तो यहाँ से क्या हुआ, वही वही वाइब्रेशंस पास हुई जो S1 के पैरेलल थी, लाइक दिस। मैम इसमें कंपोनेंट्स भी लेंगे? कंपोनेंट्स मतलब मैम जैसे कि कोई एक इंक्लाइंड है एक एंगल पे कोई वेव, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नहीं 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 नहीं, इसमें वो नहीं ओके करेंगे, मैम। ठीक है। So only those vibrations will pass which is having vibrations which is having direction parallel to the slit S1, ठीक है। अब क्योंकि S2 पैरेलल है S1 के, तो ये सारी की सारी वाइब्रेशन जो यहाँ से आई, वो ये सारी की सारी वाइब्रेशन एज सच पास हो जाएंगी यहाँ पे, एंड दे विल रीच टू द पर्सन B, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वाइब्रेशन तो सब डायरेक्शन में थी, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इस प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती थी, उन सब पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेशन थी, लेकिन ओनली दोज वाइब्रेशंस पास्ड थ्रू द स्लिट S1 व्हिच इज पैरेलल टू द स्लिट S1। तो हमने क्या किया, वाइब्रेशंस को एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इंस्टेड ऑफ हैविंग वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, now we are having vibrations restricted to one direction only, which is perpendicular to the direction of propagation. This is direction of propagation and this is the direction of vibration, ठीक है। तो ये एक ये चीज होता है। अच्छा, अब एक चीज और कर सकते हैं हम, अगर हम इस स्लिट S2 को मान लीजिए मूव करें तो क्या होगा, मूव करें इन द सेंस कि अब मैंने इसको क्या किया कि वर्टिकल नहीं रखा, मान लो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया फॉर एग्जाम्पल। मैम तो कोई वेव्स पास नहीं होंगी? यस यस यस। सो अगर ये A है, ये मेरा B पर्सन है, एंड दिस इज माय स्लिट S1 लेट्स से, एंड this is S1 and this is S2, like this, ठीक है। अब यहाँ पे तो वाइब्रेशन सब सारे डायरेक्शन में थी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस है, एंड यहाँ पे आई तो आपका पैरेलल हो गया, ठीक है। अब ये S2 की इनिशियल पोजीशन थी, अब मान लो मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इस पोजीशन को क्या किया कि हॉरिजॉन्टल नहीं रखा, मैंने इसको वर्टिकल नहीं रखा, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया, ऐसे कर दिया, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया इसको मैंने, लाइक दिस, ठीक है। तो अब जब हॉरिजॉन्टल कर दिया तो क्या होगा, ये जो वाइब्रेशंस आपकी यहाँ से स्लिट S1 से पास हुई, अब क्योंकि वो परपेंडिकुलर आप आगे मिल रहा है तो क्या करेगा, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यहाँ पे आपके पास कोई वाइब्रेशंस नहीं आएगी, जो पर्सन B है, पर्सन B तक कोई भी वाइब्रेशंस आपकी नहीं पहुंचेगी। अगर मान लो ये 45 के एंगल पे है तो क्या होगा, अगर 45 के एंगल पे है तो देयर हाफ मे बी, वाइब्रेशंस पहुंचे। yes, there may be some of the vibrations but the amplitude of those vibrations will be reduced, जितना amplitude यहाँ मैम पे you था। said we won't take any components, so ma'am if they are perpendicular, so ma'am how can we say that some of the waves will pass if it is at 45 angle? Yeah, this is, see, जब ये 45 पे होता है, so this is inclined at this angle, ठीक है, 45 पे inclined होगा, तो some of the vibrations they will pass, that's what I said, some of the vibrations will pass but they will not be having the same amplitude, जितना amplitude यहाँ पे है उतना नहीं होगा, तो उसमें क्या किया उसने, amplitude में reduction कर दिया, तो ये इतने amplitude पे, जितने amplitude पे यहाँ पे vibrations आई थी ना, वो सेम एम्पलीट्यूड को पास नहीं करेगी, बिकॉज दिस इज इंक्लाइंड, दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज इंक्लाइंड एट सम एंगल, so you'll be having smaller vibrations over here, ठीक है। तो मैम वही मतलब हुआ ना कि उसका एक कंपोनेंट जो उसके पैरेलल था वो पास हो गया जिसकी एम्पलीट्यूड कम थी।
नहीं, ऐसा इसमें इसमें देखो इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कंपोनेंट वाइज डिवाइड करने का इसमें मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं है जो आप बोल रहे हो कि हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पास हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जितना भी एम्पलीट्यूड था वो सारे का सारा आपको मिल जाता। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे दे विल बी रिड्यूस्ड बट with a less amplitude, with a smaller amplitude, ठीक है। otherwise you can search on this, आप कर सकते हो उस पर और भी सर्वे कर सकते हो, but this is the basic phenomena that when this is inclined at certain angle then you will get the amplitude which is reduced amplitude as compared to the initial one। यहाँ पे आपको vibrations मिलेंगी which is parallel to the slit S1, यहाँ पे आपको vibrations मिलेंगे with the reduced amplitude। अगर आपका purely ये परपेंडिकुलर है, अगर S2 आपका प्योरली परपेंडिकुलर है S1 के, तब तो आपको कोई एम्पलीट्यूड मिलेगा ही नहीं। सो हियर द एंटायर इंटेंसिटी एंटायर एम्पलीट्यूड विल बी स्टॉप्ड, ठीक है। अदरवाइज यू कैन जस्ट सर्च ऑन दिस, आप और भी इस पे लिटरेचर देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द वन। नाउ सेम थिंग यू कैन अप्लाई। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लीजिए इसने ए ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ मूविंग द स्ट्रिंग अप एंड डाउन और इंस्टेड ऑफ मूविंग द स्ट्रिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, नाउ द पर्सन ए is just moving this string through and इस तरह से इसका जो मोशन होता है ना, लाइक दिस, इसको आप बोलते हो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, ठीक है। तो अब इसने इसको इस तरह से मूव नहीं किया, ना ही इसने इसको राउंड एंड राउंड मूव किया, इसको क्या किया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन किया है इसको। जैसे आपको रबड़ हाथ में लेके ना उसको आगे पीछे करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो, देन इसको छोड़ते हो। तो इस तरह का जो मोशन था, बैक एंड फ्रो मोशन, तो इसमें क्या हुआ, जो वाइब्रेशन जनरेट हुई वो वाइब्रेशन आपकी क्या थी, पैरेलल टू द string है। if this is the direction of propagation then the vibrations of the string they are also parallel to the direction of propagation। तो इस केस में क्या होगा, जितनी भी आपकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो सारी की सारी पास हो जाएंगी फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है, कोई एम्पलीट्यूड रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी वाइब्रेशंस कट नहीं होंगी, ऑल द वाइब्रेशंस विल पास फ्रॉम द पर्सन ए टू पर्सन बी। okay, so these are the longitudinal vibrations and these are the transverse vibrations। okay, so this is a mechanical example which actually demonstrates the phenomena of polarization। same चीज जो है वो light के साथ होती है, क्योंकि light is transverse in nature, so when unpolarized light is being passed through the polarizer then it will restrict the light to one component only which is perpendicular to the direction of propagation। for example, ऑप्टिकल फिनोमिना कैसे होती है, सेम एग्जाम्पल को आप ऑप्टिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सी व्हाट यू डू हियर इज यू टेक द अनपोलराइज्ड लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्या होती है, राइट, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, दूसरा आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट द मैग्नेटिक कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। ये अगर ई है तो ये आपका m होगा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। if x is the direction of propagation then y will represent your electric field and z will represent your magnetic field। ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ठीक है, सो here if you allow the unpolarized light to pass through this is unpolarized light, if you allow this light to pass through a polarizer, पोलराइजर जो मोस्टली होते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं, मैं बताऊंगी आपको क्या होते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स। सो ये जो पोलराइजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ए क्रिस्टल विच इज मेड अप ऑफ टूरमेलाइन, इसको बोलते हैं टूरमेलाइन क्रिस्टल। टूरमेलाइन क्रिस्टल, ठीक है, तो इस तरह का क्रिस्टल होता है। ओके,
So when light is allowed to pass through this tourmaline crystal, then it will restrict the light to one single direction, like this. So this is the polarized light. ठीक है, सेम चीज आप अगर आपको इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, मान लीजिए अगर आपको इसकी एम्पलीट्यूड को एंड कंसिक्वेंटली अगर इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, तो क्या करोगे, एक और टूरमेलाइन क्रिस्टल यहाँ पे आप लगा दो। ओके, और आप इस टूरमेलाइन क्रिस्टल की जो पोजीशन है उसको इस तरह से फिक्स करिए जितना आपको एम्पलीट्यूड चाहिए उतना मिल जाए आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इसका हाफ एम्पलीट्यूड चाहिए, यू फिक्स इट एट 45 डिग्री, आप इसको 45 पे रख लो। या आपको बिल्कुल भी मान लीजिए यहाँ पे डार्क चाहिए कंप्लीट, आपको कोई इंटेंसिटी नहीं चाहिए, आपको ब्लॉक करना है लाइट को, तो क्या करोगे, इसको आप फिक्स कर दोगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 90 डिग्री पे एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट वन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल आपके जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस में सेम फिनोमेना यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस व्हिच यू शुड नो, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे उसमें पूछा जाता है ये। अनपोलराइज्ड लाइट, the light vector having vibrations along all possible straight lines perpendicular to the direction of propagation of light, perpendicular to the direction of propagation of light. Propagation of light is said to be unpolarized. Is said to be unpolarized light. ठीक है, जिसके डायरेक्शन सब तरफ को है, बट दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। सो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। कई बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि रिप्रेजेंटेशन बताओ इसका अनपोलराइज्ड लाइट का, ये पोलराइज्ड लाइट का। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट रिप्रेजेंट द अनपोलराइज्ड लाइट। these are the all possible perpendicular directions to the direction of propagation। ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, और ये आपके सारे जितने भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो सकती हैं पॉसिबल इसके ऊपर वो है। सो दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट। इज इट ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो मैम। ओके गुड। सो देन पोलराइज्ड लाइट को कैसे डिफाइन करोगे? The light having vibrations only along a single straight line only along a single। Ma'am, can you please show the previous page once? हाँ जी, एक से। Thank you, ma'am. Okay. So the light having vibrations only along a single straight line perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation,
propagation of light is said to be polarized. Is said to be polarized. ठीक है, तो अगर आप डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो उसको आप पोलराइज्ड लाइट बोलोगे. ओके, अच्छा, लाइट वेव की टर्म्स में कैसे डिफाइन करोगे? इन केस अगर आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पोलराइज करना है तो आप इसको क्या क्या बोलोगे? ए लाइट वेव इज सेड टू बी a light wave is said to be plane polarized if the electric vector E or magnetic vector H at any point goes on vibrating along the same line perpendicular to the direction of propagation. तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर आपका एक ही लाइन में अगर वाइब्रेट करते हैं तो उसको आप पोलराइज्ड लाइट बोलोगे. ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट ये थी आपकी. ठीक है, और अगर पोलराइज होती है लाइट तो आपके फिर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हो आप इसकी. फॉर एग्जांपल, ये जो आपके एरोज हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये आपका प्लेन है पेपर का, मान लीजिए, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है. तो जो आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, पेपर के परपेंडिकुलर होगा. और जो मैग्नेटिक वेक्टर है उसको आप ऐसे डॉट से प्रेजेंट करोगे. तो दिस डॉट विल रिप्रेजेंट योर मैग्नेटिक वेक्टर. ठीक है, so this is how to represent the polarization of the electromagnetic wave. Next is plane of vibration. क्या होता है? Plane of vibration, the plane containing the direction of vibration and direction of propagation of light is called plane of vibration. तो जिस प्लेन में आपकी वाइब्रेशन हो और जिस प्लेन में आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो उस प्लेन को आप क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये था आपका प्लेन, ये था आपका प्रोपेगेशन, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन. तो ये जो प्लेन होगा इस प्लेन को आप क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. सिमिलरली प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो होता है जो इसके परपेंडिकुलर होता है. जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. The plane perpendicular to the
plane of vibration is called plane of polarization. ठीक है? So these were few important definitions about the polarization. अच्छा, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे आप लाइट को प्लेन पोलराइज कर सकते हो? सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन पोलराइज द लाइट इन, थ्रू विच यू कैन रिस्ट्रिक्ट द लाइट टू वन सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. फॉर एग्जाम्पल, आप रिफ्लेक्शन का मेथड यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, यू कैन यूज द फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, you can use the phenomena of selective absorption, you can use the phenomena of scattering. So there are 5-6 methods which we can use to polarize the light. So methods of producing plane polarized light are: number 1, polarization by reflection. Number 2, by refraction. Number 3, by double refraction. By double refraction. Number 4, by selective absorption. Number 5, by scattering. So these are the 5 methods. By using these 5 methods, you can produce the plane polarized light. Okay. Another one which is Can you wait for a minute? Yeah, please. Thank you, ma'am. Okay. Okay, so another important thing which you should Ma'am, in these methods, do we also use optically active compounds? Optically active compounds. Substances, ma'am, like substances, like we say the substances which can rotate the plane of a polarized light is termed as optically active substance. So do we use those? We there are certain substances which are actually optically active and they can rotate the plane of the light. Okay, for example, sugar होता है आपका, sugar solution अगर आप लोगे तो वो क्या करेगा, आपके plane को rotate कर देगा. ठीक है. So there are certain substances, अगर आप इसमें डिटेल में जाओगे पोलराइजेशन में, so you can study all those. For example, हम एक आपका आई थिंक उसमें एक्सपेरिमेंट भी होगा, I don't know whether that experiment is there on virtual lab or not, but शुगर का आप ये स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड आउट करते हो उसमें, हाउ मच बाय व्हाट एंगल द प्लेन हैज़ बीन रोटेटेड. ठीक है, तो वो हम एक्सपेरिमेंटली इसको करते भी हैं. सो देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which can actually rotate the plane of the vibration of the light. Okay. Okay, so then one important thing which should be noticed over here is Brewster's law. Brewster's law, I don't know, you might have studied this law in our previous classes also. So this law states that the refractive index is related to the
polarizing angle by the relation mu is equal to tan I p. Okay, so this says that if light is being incident, if unpolarized light is being incident on this interface, let us say ये हमारा glass material है, ठीक है, और ये ऊपर हमारा air है, so this is the interface of air and glass, ठीक है. इसके ऊपर अगर आप कोई unpolarized light को incident करते हो, this is unpolarized light, let us say, then a portion of the light is reflected and a portion of the light is being refracted, ठीक है. तो ये आपका अगर मान लीजिए नॉर्मल है, तो ये ब्रियस्टल लॉ क्या बोलता है कि अगर एक ऐसा पोलराइजिंग एंगल आता है, अगर आप इस पोलराइजिंग एंगल के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करोगे, देन that polarizing angle is related to the refractive index of the material, and you can find out the refractive index of the material, which is mu is equal to tan of IP. So if the light is being incident at the polarizing angle to this interface, then you will get a partially reflected light and a partially refracted light. Okay, so this is what Brewster law states. एंड आप इसको ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये जो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये भी आप प्रूव कर सकते हो इसमें, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आप इसको बताऊं, सो म्यू इज इक्वल टू tan IP, ठीक है. इसको कैसे लिख सकते हो, sin IP डिवाइडेड बाय cos IP, ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है. और स्नेल्स लॉ यूज करो यहाँ पे. स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू इज इक्वल टू साइन IP एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय कॉस IP विच इज अगेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दिस इज साइन IP अपॉन कॉस IP. दोनों को इक्वेट कर दो, साइन IP और कॉस सॉरी ये वाला म्यू जो है वो इस वाले म्यू को, दोनों को अगर आप इक्वेट कर देंगे. Here IP is angle of incidence, right? या एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन क्या है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, पोलराइजिंग एंगल. आई टोल्ड यू दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. जिस एक ऐसा एंगल आता है जब आप लाइट को इंसिडेंट करते हो, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज हो जाती है, राइट. सो दैट पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज द पोलराइजिंग एंगल. ओके, फॉर एग्जांपल ग्लास के लिए जो जैसे उसमें क्रिटिकल एंगल होता है उस टाइप का कुछ. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है. फॉर एग्जांपल ग्लास के लिए जो एंगल होता है, जो IP की वैल्यू होती है वो 57 होती है. तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल पे इंसिडेंस करोगे तो आपका लाइट जो है वो पोलराइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है. देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट एंगल, एंड एट दैट एंगल इफ यू मेक द लाइट इंसिडेंट, देन the reflected and refracted light will be plane polarized. ग्लास के लिए जो पोलराइजिंग एंगल की वैल्यू होती है वो ये होती है, 57 डिग्री होती है. ओके, सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, म्यू स्नेल्स लॉ से और म्यू ब्रीवेस्टर लॉ से. सो साइन IP अपॉन कॉस IP इज इक्वल टू साइन IP अपॉन दिस कॉस IP, सॉरी अच्छा स्नेल्स लॉ में हमने गलत कर दिया इसको. दिस इज साइन IP अपॉन साइन R, where angle R is the angle of reflection. Okay, so ये आपका आ गया साइन IP अपॉन कॉस IP. दोनों को इक्वेट करोगे तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो. सो यू कैन फाइंड आउट दैट जो आपका एंगल होता है इन दोनों के बीच में ये कितना है, ये 90 डिग्री का होता है. इक्वेट करोगे, इक्वेट करके साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर कॉस दोनों एंगल्स को इक्वेट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा R प्लस IP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. एंड देन IP प्लस थीटा प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर आप यहाँ से ज्योमेट्रिक्स देखोगे तो ये आएगा आपके पास. सो यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, सो यू कैन फाइंड दैट दिस इज 90 डिग्री, ठीक है. सो दिस इज वन पार्ट. बाकी फिर डबल रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी आपको, बट इसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगी, अभी तो नहीं हो पाएगा ये. डबल रिफ्रैक्शन क्या है, निकोल प्रिज्म क्या है, एंड देन स्पेसिफिक रोटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर. इज दैट ओके स्टूडेंट्स? इन डाउट?
मैम डेफिनेशन क्या होगी ब्रूस्टर्स लॉ की अगर कोई स्टेटमेंट दे तो? ब्रीवेस्टर्स लॉ की ओके, क्या होगा स्टेटमेंट? ब्रीवेस्टर लॉ का स्टेटमेंट यही है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। दिस इज वेरी फेमस रिलेशन। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में कोई पूछे तो यही बोलो कि द पोलराइजिंग एंगल IP एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल relative to the surrounding medium, they are related to each other by the relation mu is equal to tan IP। ठीक है? Okay, so that's all for today. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you. Have a good day.